Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. Today we are going to start Unit 2 Wit and Humor from your Class 7 NCERT English book Purvi. And our first story is the world famous and super fun tale Animals, Birds, and Dr. Dolittle. So this story is written by Hugh Lofting. So get ready for your laughter, imagination, and adventure because this story will take us to a world where animals actually talk. So this is a humorous and imaginative story about a kind and gentle doctor named Dr. Dolittle who has a very special gift. He can understand and speak the language of animals and birds. So Dr. Dolittle loves animals more than anything else. He treats them with kindness, talks to them, and even learns from them. While other people think he's strange, animals know that he is their true friend. So in this story, we see uh, how his compassion and curiosity lead him on amazing adventures. He helps sick animals, talks to parrots, monkeys, and even exotic creatures, and proves that kindness and understanding can build friendship beyond words. This story is filled with wit, cleverness, humor, and fun, but also gives us a gentle lesson about love, empathy, and all living respect for all living beings. So this chapter teaches us that animals too have emotions, intelligence, and friendship, and sometimes they understand love better than humans do. So let's begin the story. Yes, Dr. Dolittle was sitting in his kitchen talking with his cat's foodman who had come to see him with a stomach ache. अब ये जो डॉक्टर डूलिटल है ये अपने किचन में बैठे हैं और एक आदमी से बात कर रहे हैं, और ये आदमी उनकी कैट का फूड मैन है जो कि उनके पास आया है पेट का दर्द लेकर. सो देयर इज़ अ कैजुअल conversation is happening between Dr. Dolittle and a man from the town. Why don't you give up being people's doctor and be an animal doctor? आज द कैट्स फूड मैन. तो वो जो कैट फूड प्रोवाइड करने वाला जो आदमी है, ये थोड़ा सा मजाक के तौर पे बोलता है, क्यों ना आप इंसानों का इलाज छोड़कर जानवरों के डॉक्टर बन जाए. वो तो मजाक में कह रहा था ये बात, लेकिन यही बात आगे चलकर सच्चाई बनेगी. द पैरेट द पैरेट Polynesia was sitting in the window looking out at the rain and singing a sailor song to herself. She stopped singing and started to listen. अब जो पैरेट है वो विंडो पर बैठा होता है और वो बाहर हो रही रेन को देख रहा होता है. ये पैरेट तो ये बाहर देख रहा होता है और ये एक सेलर सॉन्ग गा रहा होता है खुद से ही. मतलब ये खुद से ही पैरेट जो है गा रही है, बट ये बात सुन के ये गाना गाना बंद कर देती है पैरेट, और बात को सुनने लगती है, सॉरी. You see, doctor, the cat's food man went on. You know all about animals much more than what these vets here do. अब वो कहता है कि आप देखिए डॉक्टर, ये बात बहुत ही सीरियस है कि आपको जानवरों के बारे में बहुत ज़्यादा पता है. वेट्स होते हैं एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं उनको वेट्स कहते हैं. तो वो कहता है कि आप तो जानवरों के डॉक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं. इतना तो आप तो जानवरों के बारे में जानवरों के डॉक्टर से ज़्यादा जानते हैं. So the man admits that Dr. Dolittle had deep knowledge about animals. The book you wrote about cats, why it's wonderful. अब वो आदमी कहता है कि आप बिल्ली पर आपने जो ये कैट पर जो अपनी बुक लिखी थी ये तो बहुत ही वंडरफुल है. सो डॉक्टर डोलिटल नॉट ओनली ट्रीट्स पीपल बट ऑल्सो राइट बुक्स अबाउट एनिमल. आई कांट read or write myself. My wife Theodosia is a scholar and she read your book to me. अब वो कहता है कि मतलब मुझे तो मतलब मैं तो खुद से कुछ पढ़ता लिखता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी वाइफ है
वो बहुत बड़ी स्कॉलर है, वो बहुत पढ़ती है। उसने आपकी ये किताब पढ़ी थी और मतलब उसने मुझे वो बुक पढ़ कर बताया और उसको आपकी ये बुक बहुत पसंद भी आई। सो इवन मतलब जो पीपल है, द एजुकेटेड पीपल, द स्कॉलर पीपल एडमायर हिज नॉलेज। यू माइट हैव अ कैट योर सेल्फ, यू नो द वे दे थिंक। सो वो कहता है कि आप तो बिल्कुल मतलब आप तो खुद भी एक कैट जैसे ही हैं। आपको उनकी सोच पता है। मतलब ये जो बुक इन्होंने लिखी है कैट के बारे में, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखी है जैसे कैट सोचती होगी, मतलब कैट के पर्सपेक्टिव से लिखी है। मतलब इस बुक को पढ़कर ऐसा लगता है कि आप खुद ही एक कैट हैं। तो मतलब वो थोड़े फ़नी वे में कहता है कि डॉक्टर डूलिटल की जो काफ़ी डीप नॉलेज है, काफ़ी गहरी समझ है कैट्स को लेकर, इवन दूसरे एनिमल्स को भी लेकर, तो वो काफ़ी तारीफ़ भी कर रहा है। When the cat's footman had gone, the parrot flew off the window onto doctor's table and said, "That's man got sense. That's what you ought to do." तो अब वो आदमी चला गया। तो डॉक्टर लिटिल का जो तोता था पॉलिनेशिया, यस, तो ये आदमी तो चला जाता है। फिर ये जो पॉलिनेशिया है वो खिड़की से उड़कर उनके पास आता है, डॉक्टर के टेबल पर आता है और उनसे कहता है, मतलब ये डॉक्टर से जो पैरट है ये बात करेगा, ये टेबल पे आके बैठ गया है ना, अब ये बात करेगा क्योंकि अब वो आदमी तो जा चुका है। अब वो पॉलिनेशिया कहता है कि वो आदमी सही कह रहा था, दैट्स मैन गॉड सेंस, मतलब उस आदमी की बात सही थी, दैट्स वॉट यू ऑट टू डू, आपको सच में जानवरों का डॉक्टर बनना चाहिए। सो द पैरट एग्रीज विद द मैन एंड गिविंग द सेम एडवाइस सीरियसली दिस टाइम। सो वो कहता है कि बी एन एनिमल डॉक्टर, एनिमल्स के डॉक्टर बन जाइए। गिव द सिली पीपल अप, इन मूर्ख लोगों को छोड़ दो, इनका इलाज करना छोड़ दो। सो गिव अप, गिव द सिली पीपल अप इफ़ दे हैवंट ब्रेन्स इनफ टू सी यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। वो कहता है कि ये मूर्ख जो लोग हैं, इंसान है, इनका इलाज करना छोड़ दो। टेक केयर ऑफ़ एनिमल सिस्टम, मतलब इनके पास तो मतलब ये तो वैसे ही इतने मूर्ख हैं, इनका इलाज छोड़ो, इनकी जगह एनिमल्स का ध्यान रखो, जानवरों का डॉक्टर बन जाओ। एंड दे विल सून फाइंड इट आउट, बी एन एनिमल डॉक्टर। वो लोग कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढ लेंगे, आप एनिमल्स के डॉक्टर बन जाओ, एनिमल्स के लिए बड़ी सही बात रहेगी। तो पॉलिनेशिया मजाक में भी ये बात कह रहा है कि जानवर ही डॉक्टर लिटिल को मतलब समझ सकते हैं, मतलब डॉक्टर डू लिटिल जो है वही जानवरों को समझ पाते हैं, तो उन्हें इंसानों को छोड़कर जानवरों का ही डॉक्टर बन जाना चाहिए। अब डॉक्टर जॉन डू लिटिल कहते हैं, ओ दे आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स पुटिंग द फ्लावर पॉट्स आउटसाइड द विंडो सिल एंड टू गेट द रेन। अब डॉक्टर डू लिटिल कहते हैं कि अरे यार जानवरों के डॉक्टर्स तो बहुत हैं। तो पॉलिनेशिया क्या कहता है, yes they are plenty said Polynesia, but none of them any good at all. Now listen doctor, I'll tell you something. Did you know the animals can talk? वो कहता है कि हाँ जानवरों के डॉक्टर्स तो बहुत हैं लेकिन कोई अच्छा डॉक्टर तो नहीं है। मतलब ये लाइन काफ़ी मज़ेदार, कहानी को काफ़ी मज़ेदार बनाती है कि ये लाइन दिखाती है कि तोता कितना ज़्यादा चालाक और बोल्ड है। अब फिर वो पूछता है उसको, डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक? तो पॉलिनेशियन यहाँ पूछता है कि आपको पता है कि जानवर बात कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट, डॉक्टर डू लिटिल इज सरप्राइज्ड। आई न्यू द पेट्स कैन टॉक सेड द डॉक्टर। डॉक्टर कहते कि हाँ मुझे पता है तोते तो बात करते हैं जैसे तुम बात कर रहे हो। ही ओनली नोज दैट पैरट्स कैन मिमिक ह्यूमन स्पीच नॉट रियल कॉन्वर्जेशन। मतलब पैरट्स भी जो है वो बात कर सकते हैं लेकिन दूसरे जानवर, दूसरे बर्ड्स तो नहीं कर सकते। सो आगे पैरट बोलता है, ओ वी पैरट्स कैन टॉक इन टू लैंग्वेज, द पीपल्स लैंग्वेज एंड द बर्ड्स लैंग्वेज सेड पॉलिनेशिया प्राउडली। इफ़ आई से पॉली wants cracker, you understand me, but hear this, ka ka o e fi fi, this is the bird language. तो वो कहता है कि हाँ हम जो पैरट्स हैं हम दो लैंग्वेज में बात करते हैं, एक तो वो लैंग्वेज है जो तुम इंसानों की और दूसरी लैंग्वेज वो है जो बर्ड्स की है। तो बर्ड्स की भी अपनी एक लैंग्वेज है और हम पैरट जो है हम दोनों लैंग्वेज में बोलना जानते हैं। वो थोड़ा प्राउड फील करता है इस बात पर कि हाँ हम जो हैं बोल लेते हैं, हम इंसानों की भी भाषा बोलते हैं इसलिए इंसान हमसे बात कर पाते हैं और बर्ड्स की भाषा तो हमें आएगी ही। तो वो कहता है कि अगर मैं मुझे अगर बोलना हो, मतलब वो थोड़ा उसको फ़नी वे में समझाता है कि अगर मैं का ऊ ई फी फी बोलूँ ना
तो इसका मतलब समझ जाना, पॉली वॉन्ट्स क्रैकर, राइट. So here we can see that the parrot demonstrates bird's language in action. अब डॉक्टर कहता है गुड ग्रेशियस, व्हाट डज दैट मीन, राइट. अब डॉक्टर हैरान करता है कि तुमने मतलब इसका मतलब क्या है. ये जो एक्चुअली ना ये से एग्जाम्पल देता है. इफ़ आई से पॉली वॉन्ट्स क्रैकर तो तुम समझ जाते मुझे, बट इसको सुनो, मतलब ये बोल के सुनाता है का ओ ई फी फी. तो वो कहता है अरे ये तो तुमने बड़ा अच्छा बोला, ये तो बर्ड्स की लैंग्वेज है, लेकिन इसका मतलब क्या है. तो अब ये इसका मतलब यहाँ बताता है ये पैरेट, दैट मीन्स इज़ द पोरिज हॉट येट इन द बर्ड लैंग्वेज. तो वो कहता है कि इसका मतलब है का ऊ ई फी का मतलब है दलिया. क्या दलिया गर्म हुआ, अभी तक गर्म है दलिया. सो द पैरेट डेमोन्स्ट्रेट द बर्ड लैंग्वेज इन एक्शन. अब डॉक्टर हैरान हो गया इस बात से कि अरे मतलब माई यू डोंट से सो, सेड द डॉक्टर, यू नेवर टॉक दैट द वे टू बी बिफोर. अब वो कहता है कि तुमने तो मुझे पहले कभी नहीं बताया ऐसे में. सो इट मीन्स दैट डॉक्टर डू लिटिल इज अमेज्ड टू लर्न अबाउट द सीक्रेट एनिमल लैंग्वेज, राइट. अब वो कहता है वॉट वुड हैव बीन द गुड, सेड पोलिनेशिया, डस्टिंग सम क्रैकर्स क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग. यू वुडेंट हैव अंडरस्टूड मी इफ़ आई हैड. सो अब वो कहता है कि हाँ अच्छा ही क्या हो जाता, ऐसा कहता है पोलिनेशिया, और अपने कुछ क्रैकर क्रम्स को अपने लेफ्ट विंग से थोड़ा सा डस्ट करता है. तो वो कहता है कि अगर मैं ऐसा कह भी देता तो क्या ही अच्छा हो जाता, तुम मुझे समझ थोड़ी पाते हो, तो मैंने तुम्हें मतलब बताया. अब डॉक्टर कहता है टेल मी सम मोर, said the doctor, all excited. And he rushed over to the drawer and come back with a book and pencil. Now don't go too fast and I will write it down. This is interesting, very interesting, something quite new. Give me the birds ABC first, slowly now. अब डॉक्टर बहुत एक्साइटेड हो जाते, कहते हैं अरे अरे मुझे और बताओ कि तुम किस लैंग्वेज इस अपनी बर्ड्स लैंग्वेज में क्या कहोगे, तो उसका क्या मतलब है. तो हिज क्यूरियोसिटी फॉर एनिमल्स बिगिंस हियर एंड दे स्टार्ट ऑफ दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ हिज न्यू पैशन. कि अब वो बर्ड्स की लैंग्वेज सीखेगा, और वो भाग कर ड्रॉर के पास जाता है, वहाँ से एक बुक और पेंसिल लेके आता है, और अब कहता है कि तेज मत बोलना, मैं लिखूँगा. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा. चलो तुम मुझे बर्ड्स की लैंग्वेज की ABC सिखाओ. हम जब भी कोई लैंग्वेज नहीं सीखते तो उसका अल्फ़ाबेट सीखते हैं ना, हिंदी हो इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज हो, तो वही सीखेगा ये. बट कहते हैं पहले मुझे बर्ड्स की ABC सिखाओ और थोड़ा धीरे सिखाना, क्योंकि बर्ड्स तो बहुत तेज़ बोलते हैं ना. तो वो कहता है कि पहले मुझे बर्ड्स की ABCD सिखाओ धीरे धीरे. सो डॉक्टर डूलिटल स्टार्ट लर्निंग द बर्ड लैंग्वेज लाइक अ स्टूडेंट. सो यहाँ हमने देखा कि डॉक्टर डूलिटल को पता चल गया कि जानवरों की, बर्ड्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो अब वो सीख रहे हैं. सो दैट वॉज द वे डॉक्टर केम टू नो दैट एनिमल्स हैड अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन एंड कुड टॉक टू वन अनदर. तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर डूलिटल को पता चल गया है कि जानवरों की अपनी एक लैंग्वेज होती है. सो दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिज जर्नी एज एन एनिमल डॉक्टर. And all that afternoon, while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table, giving him bird words to put down in the book. So अब पूरी दोपहर में जब तक बारिश होती रहती है, तो जो ये पोलिनेशिया ये किचन टेबल पे बैठा रहता है और उसको वर्ड्स बताता है, और ये सारे वर्ड्स को धीरे धीरे समझ कर इस नोटबुक में लिख रहा होता है. एट टी टाइम व्हेन द डॉग का नाम है जिप, केम इन द पैरेट सेड टू डॉक्टर, सी ही इज़ टॉकिंग टू यू. जब शाम को चाय का समय होता है तो डॉग जिसका नाम जिप है वो आता है. पैरेट उसे कहता है कि देखो वो तुमसे बात कर रहा है. लुक्स टू मी एज दो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर, सेड द डॉक्टर. वो कहते हैं मेरी तरफ देखो, और वो अपने ईयर को थोड़ा स्क्रैच करता है. बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ, said the parrot in a high voice, raising her eyebrows. They talk with their ears, with their feet, with their tails, with everything. Right? अब पोलिनेशिया यहाँ पर समझाता है कि जो एनिमल्स होते हैं हमेशा मुँह से नहीं बोलते हैं, वो कभी अपनी आँखों को, अपने कान, अपने पैर और पूँछ से ही बात करते हैं. राइट. तो यहाँ पर एनिमल लैंग्वेज जो है वो सिर्फ साउंड के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट एक्सप्रेशंस एंड बॉडी मूवमेंट्स एज वेल. तो वही उसको ये बताता है. तो यहाँ हमने सीखा कि डॉक्टर डूलिटल एक नई दुनिया
में एंटर कर रहे हैं, जहाँ वो बर्ड्स और एनिमल्स की लैंग्वेज सीख रहे हैं, जहाँ उनका ये जो तोता है पॉलिनेशिया उन्हें बताता है कि जानवर भी बात कर सकते हैं, और धीरे धीरे डॉक्टर डूलिटल उनकी भाषा सीखने लगते हैं, और यहीं से उनकी एनिमल डॉक्टर बनने की शुरुआत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। So sometimes they don't want to make a noise. Did you see now the way he is stretching up one side of his nose? अब यहाँ पर ये कहता है कि हमेशा वो आवाज़ शोर भी नहीं करता है, तो कभी तुमने देखा है कि किस तरह से वो अपने एक नोज़ को ट्विच करता है? तो कहता है हाँ देखा तो है कि वो जो डॉग है जब वो अपनी एक नोज़ की एक तरफ को ट्विच करता है। तो डॉक्टर पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तो पैरट बताता है इसका मतलब है कांट यू सी दैट इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग। मतलब इसका आंसर है कि तुमको पता नहीं है कि बारिश बंद हो गई है। सो पॉलिनेशिया आंसर करता है कि वो जब जब इस तरह से अपनी नोज़ को एक साइड को ट्विच कर रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि बारिश बंद हो गई है। एंड ही इज़ आस्किंग यू अ क्वेश्चन। डॉग्स नियरली यूज़ देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। तो डॉग्स जो हैं वो अपनी नोज़ को यूज़ करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। After a while, with the parrot's help, the doctor got to learn the language of animals so well that he could talk to them himself and understand everything they said. He gave up being a people's doctor altogether. अब कुछ ही समय बाद मतलब पैरट की हेल्प से, पॉलिनेशिया की हेल्प से डॉक्टर जो है वो एनिमल्स की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख जाता है और उनसे खुद बात करने लगता है, और वो ये भी समझ पाते हैं डॉक्टर डूलिटल की ये एनिमल कह रहा है। और उसके बाद वो इंसानों का जो डॉक्टर थे वो पहले वो भी छोड़ देते हैं, अब वो जानवरों के डॉक्टर बन जाते हैं। राइट, अब पार्ट 2 पढ़ते हैं। As soon as the cat's footman had told everyone that Dr. John Dolittle was going to become an animal doctor, old ladies began to bring him their pet pugs, poodles who had eaten too much cake, and farmers came many miles to show him sick cow and sheep. अब जैसे ही कैट फूड्स मैन जो है वो ये सबको बता देता है, धीरे धीरे हर किसी को बता देता है कि डॉक्टर डूलिटल अब इंसानों के डॉक्टर नहीं रहे, अब वो जानवरों के डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो ये बात ना पूरे शहर में फैल जाती है, जैसे गांव में आग आग फैल जाती है ऐसे ही पूरे शहर में फैल जाती है। और जैसे ही ये बात सबको शहर में पता चल जाता है कि डॉक्टर जॉन डूलिटल अब एक जानवरों के डॉक्टर हैं, तो जो बहुत ही ओल्ड लेडीज़ होती हैं वो अपने पेट्स को, अपने पग्स, अपने पुडल्स, मतलब डॉग्स की ये स्पीशीज़ होती है, इन सबको ब्रीड्स होती है, इन सबको लेकर आने लगती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा केक खाकर बीमार हो गए थे। फार्मर्स भी आते हैं बहुत दूर से चलकर अपनी बीमार काउज़ और शिप को दिखाने के लिए। मतलब जैसे लोगों को पता चलता है कि भाई अब हमारे हमारे जो हमारा ये शहर है इसमें अब एक जानवरों का डॉक्टर है, तो सब अपने अपने एनिमल्स को जैसे अपने बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए लेकर आते हैं ना, ऐसे ही इनको लेकर आते हैं। सो पीपल ट्रीट पेट्स लाइक चिल्ड्रन एंड डॉक्टर डूलिटल बिकम्स देयर न्यू फेवरेट डॉक्टर। मतलब फार्मर्स भी लेकर आ रहे हैं अपनी बीमार गाय और भेड़ों को, दूर दूर से लेकर आ रहे हैं, और जो शहर की जो बूढ़ी औरतें वो अपने डॉग्स को लेकर आ रही हैं, पेट्स को लेकर आ रही हैं। सो नाउ डॉक्टर डूलिटल्स एनिमल हॉस्पिटल वाज बिकमिंग फेमस एवरीवेयर। ये देखो, ये डॉग लाया है, ये भी डॉग लाया है, और ये अपनी काऊ लेकर आया है। One day a plough horse was brought to him, and the poor thing was a terrible glad to find a man who could talk in horse language. अब एक दिन एक हल प्लो होता है, हल चलाने वाला एक उसके पास घोड़ा लेकर आया जाता है। सो वो बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्म हाउस होता है दैट केम टू सीक डॉक्टर डूलिटल्स हेल्प। एंड द पुअर थिंग वॉज दैट, और उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी कि वो बेचारा घोड़ा बहुत खुश हुआ ये जानकर कि अब आखिर कोई तो इंसान है जो घोड़ों की भाषा समझ सकता है, मतलब उसकी बात को, उसके मन की बात को ये समझ जाएगा। ये तो खैर ये तो काव है, एक घोड़ा आता है मतलब, तो ये काव जो घोड़ा है वो बहुत खुश हो जाता है कि अब चलो कोई तो हमारी मन की बात समझेगा। सो ह्यूमर इज़ द हॉर्स इज़ सो रिलीव फाइनली समवन अंडरस्टैंड्स हिम। यू नो डॉक्टर सेड द हॉर्स। अब देखिए हॉर्स कह रहा है उसको, यू नो डॉक्टर
द वेट ओवर द हिल नोज नथिंग एट ऑल। अब घोड़ा उसको कहता है कि आप जानते हैं डॉक्टर, वो जो पहाड़ी के पार वाला जो जानवरों का डॉक्टर है, वेट जो है ना, वो उसे तो कुछ भी नहीं आता, वो कुछ नहीं जानता हमारे बारे में। सो द हॉर्स कंप्लेन्स अबाउट द प्रीवियस डॉक्टर हु डिडंट अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम। ही हैज़ बिन ट्रीटिंग मी 6 weeks नाउ फॉर समथिंग और द अदर। वो कहता है, घोड़ा उसको बताता है कि वो मुझे 6 हफ्ते से एक गलत बीमारी का इलाज दे रहा है, मतलब उसको ये भी नहीं पता कि मुझे एक्चुअल में हुआ क्या है। अब देखिए, इंसान अगर डॉक्टर नहीं समझ पाता कई बार कि इंसान के साथ क्या दिक्कत है, तो इंसान खुद भी बता देता है कि भाई उसके क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जानवर तो नहीं बता पाता है। तो ये डॉक्टर की ही स्किल्स होते हैं कि वो खुद से पता लगाए कि उस जानवर को हुआ क्या है। अब वो बेचारा जो वेट है, हिल हिल के पहाड़ी की दूसरी तरफ वाला, वो तो जान ही नहीं पा रहा, तो वो किसी और चीज़ की उसको मेडिसिन दे रहा है, मतलब वो उसे गलत बीमारी का ट्रीटमेंट दे रहा है। सो द हॉर्स इज़ फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दैट डॉक्टर, and the old doctor didn't even know what was wrong with him, right? What I need is spectacles. I am going blind in one eye. अब वो कहता है कि मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है एक स्पेक्टिकल की, चश्मे की, क्योंकि मेरी एक आँख से दिखना बंद हो रहा है। सो द हॉर्स इज बिलीव्स हिज प्रॉब्लम इज़ पुअर आई साइट नॉट द सिकनेस। तो उसे दिख नहीं पाता, इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर पाता, और उसके मालिक और डॉक्टर को लगता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे सिकनेस है, जबकि सिकनेस नहीं है, बस दिख नहीं रहा है। सो द हॉर्स इज आस्किंग फॉर ग्लासेस, एंड दैट वॉज द फनीस्ट एंड स्मार्टेस्ट ट्विस्ट। देर इज़ नो रीज़न वाई हॉर्स शुडेंट वियर ग्लासेस द सेम एज पीपल। अब वो कहता है कि मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि डॉक्टर्स जो है हम लोगों को चश्मा क्यों नहीं देते, मतलब हॉर्सेस जो है वो चश्मा क्यों नहीं पहनते जैसे इंसान पहनते। हमारी भी तो आंखें वीक हो सकती हैं। बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई टाइज। और वो कहता है कि वो स्टूपिड डॉक्टर, उसने कभी मेरी आंखों की तरफ देखा ही नहीं। ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स। वो मुझे बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ, गोलियाँ देता है दवाई की। आई ट्राई टू टेल हिम। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं उसे बताऊं, बट ही कुडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज। बट उसे तो हॉर्स लैंग्वेज का कोई एक शब्द नहीं आता। व्हाट आई नीड इज स्पेक्टिकल्स। वो मतलब अगर उसे आता होता तो वो उसे बता देता ना कि मुझे स्पेक्टिकल्स की ज़रूरत है। तो डॉक्टर कहता है, ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर, आई विल गेट यू सम एट वंस। कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए कुछ रेडी कराता हूँ, मतलब स्पेक्टिकल्स रेडी कराता हूँ। सो द काइंड डॉक्टर टेक्स द हॉर्स सीरियसली, नॉट लाफिंग बट हेल्पिंग। I would like a pair like yours, said the horse. Only green. अब घोड़ा बोला, मुझे आपके जैसे चश्मा चाहिए, हरे रंग का, बस हरे रंग का होना चाहिए और आपके जैसा। They will keep the sun out of my eyes while I am plowing the field. So मतलब उसका इसने बोला नहीं कि मुझे आपके जैसा चश्मा चाहिए ग्रीन कलर का, मतलब इवन एनिमल्स हैव फैशन चॉइसेस नाउ। सो वो कहता है कि वो फिर जो ये सन ग्लासेस होंगे, मतलब जो स्पेक्टिकल्स होंगे, मुझे सन की रेस से बचाएंगे जब मैं फील्ड पर काम करूँगा। तो डॉक्टर कहता है, सर्टेनली ग्रीन वंस यू शेल हैव, कि हाँ बिल्कुल तुमको ग्रीन कलर की ही स्पेक्टिकल्स मिलेंगे। So the doctor is polite and kind, and he treats animals like real patient. You know the trouble is, sir, said the plough horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can doctor animals just because the animals don't complain. अब घोड़ा यहाँ पे थोड़ी समझदारी से बोलता है कि देखिए डॉक्टर साहब, दिक्कत ये है कि हर कोई सोचता है कि वो जानवरों का इलाज कर सकता है, क्योंकि जानवर शिकायत नहीं करेंगे। सपोज़ अगर आप जानवरों के डॉक्टर हैं और आपने किसी पर्टिकुलर एनिमल के पेट में दर्द है, लेकिन आपने उसको सर दर्द की दवाई दे दी या उसको पैर दर्द की दवाई दे दी, तो वो कंप्लेंट थोड़ी करेगा कि आपने मुझे गलत दवाई दे दी। तो इंसानों को यही लगता है कि वो जानवरों के डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि जानवर कभी कंप्लेंट नहीं करेगा। सो द हॉर्स गिव्स अ वाइस एंड विटी रिमार्क दैट एनिमल्स सफ़र silently, so people ignore their feelings. So it's a reminder that animal can't speak up for their pain. That's why they need kind doctors. As a matter of fact, it takes much cleverer men to be a really good animal doctor than it does to be good people's doctor. अब वो कहते हैं कि बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जानवरों का डॉक्टर बनो, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर बनो। मतलब बहुत ही क्लेवर मैन होना चाहिए, क्लेवरर मैन होना चाहिए जो जानवरों का डॉक्टर बने, मतलब जानवरों का डॉक्टर कोई अच्छा डॉक्टर ही बने।
इंसानों का डॉक्टर बनने से कहीं ज़्यादा कठिन है कि आप, क्योंकि इंसान तो फिर भी कंप्लेंट कर देगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंसानों के चाहे कैसे भी डॉक्टर हो, लेकिन हाँ जानवरों का डॉक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए. सो द हॉर्स गिव्स अ डीप मैसेज टू अंडरस्टैंड एनिमल्स. One must be gentle and observant and wise. So understanding without words take true intelligence. डॉक्टर कहते हैं वेल द डॉक्टर सेड, कहते हैं हाँ ठीक है. उसके बाद तुरंत घोड़ा पूछता है व्हेन विल माई ग्लासेस बी रेडी, तो मेरी ग्लासेस, मेरे जो चश्मा है वो कब रेडी हो जाएगा. सो द हॉर्स बिहेव्स जस्ट लाइक अ ह्यूमन कस्टमर, ह्यूमन पेशेंट, एंड ही इज़ वेटिंग फॉर हिज ऑर्डर. सो ये पूछते हैं मेरे ग्लासेस रेडी कब हो जाएंगे. अब ये इसको कहता है आई विल हैव देम फॉर यू नेक्स्ट वीक सेड द डॉक्टर, कम इन अगेन ट्यूसडे, गुड मॉर्निंग. अब वो उसको बोलता है कि तुम्हारी जो ये जो चश्मा है ये अगले हफ्ते तक रेडी हो जाएगा और तुम ट्यूसडे को आ जाना. तो और इसको ये ऐसे गुड मॉर्निंग बोलकर बाय बोल देता है. सो बिल्कुल इसको ट्रीट कर रहा है ये जैसे किसी इंसान पेशेंट को करते हैं ना, डॉक्टर बिल्कुल इस हॉर्स को ट्रीट कर रहा है. So he treats the horse exactly like a real patient, friendly and professionally. So the end is sweet and funny, and the doctor's kind makes even the animal smile, right? So हमने देखा कि यहाँ पर डॉक्टर डू लिटिल की फेम काफ़ी बढ़ती जाती है. हर कोई अपने जानवरों को उनके पास लेके आता है क्योंकि वो उन्हें प्यार से सुनते हैं, समझते हैं, उनका इलाज करते हैं. और एक पेशेंट जो ये आता है ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, और जो उन्हें बताता है कि जानवरों का डॉक्टर बनना आसान नहीं है क्योंकि जानवर कभी कंप्लेन नहीं करते, लेकिन डॉक्टर डूलिटल उन्हें महसूस करते हैं, इसलिए वो दुनिया के सबसे अच्छे वेट हैं, सबसे अच्छे एनिमल डॉक्टर बन जाते हैं. राइट, अब आगे बढ़ते हैं. Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles, and the plow horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. अब डॉक्टर डू लिटिल घोड़े के लिए बहुत सुंदर ग्रीन कलर के बहुत ही बड़े स्पेक्टिकल्स बनवा देते हैं. सो ही केप्ट हिज प्रॉमिस. देखिए लगे ना ग्रीन कलर के कितने सुंदर चश्मे लगाए हैं इसने. So he kept his promise and treated the horse kindly. So imagine a horse wearing spectacles like a professor. And plow horse stopped going blind. और फिर क्या हुआ कि घोड़ा बिल्कुल ठीक हो गया, अब उसकी दोनों आँखों से वो क्लियर देख पा रहा था, तो प्लोइंग करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होती थी. सो द ट्रीटमेंट वर्कड विच शोज डॉक्टर डूलिटल्स केयर एंड इंटेलिजेंस, राइट. And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in countryside, and round Puddleby and a blind horse was a thing unknown. So थोड़े समय में अब ये मतलब कंट्री साइड में, गांव में, विलेज में ये बात आम हो गई. लोगों ने खेतों में एक स्पेक्टिकल लगाए जानवर देखे, मतलब बहुत सारे एनिमल्स थे जिनकी आंखें वीक थी, उन सब ने स्पेक्टिकल्स लगाए हुए थे. सॉरी फॉर दिस डिस्ट्रैक्शन. यस. सो आप इमेजिन करिए कि कैसे, मतलब आप सोचिए आपके आसपास एनिमल्स घूम रहे हैं, सब ने किसी ने जिनकी आंखें वीक है उन्होंने स्पेक्टिकल्स लगाए. देख के कितना ह्यूमरस लगता है. इमेजिन काउ पिग शिप्स, even dog walking around with spectacles. That's pure comedy, right? And so it was with all the other animals that were brought to him. धीरे धीरे हर तरह के एनिमल्स उनके पास आने लगे. सो Dr. Dolittle became famous. Everyone trusted him now. As soon as they found that he could talk their language, they told him where the pain was and how they felt, and of course it was easy for him to cure them. अब धीरे धीरे जानवर उसके पास आने लगे, और जैसे उनको पता चला कि डॉक्टर डोलिटल तो उनकी भाषा बोल सकते हैं, उनकी भाषा समझ सकते हैं, तो वो खुद बता देते थे कि उनको कहाँ पेन है, उन्हें कैसा पेन है, क्या प्रॉब्लम है. सो कम्युनिकेशन मेड हीलिंग easier to, because true understanding heals faster, right? सो बहुत ईजी हो गया था. अब उनके लिए जो इलाज में मतलब प्रॉब्लम नहीं आती थी. पहले वेट्स थे उनसे इलाज कराने में जानवरों को बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन डॉक्टर डूलिटल
से इलाज कराते समय उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम को बता दिया करते थे. नाउ ऑल दीज एनिमल्स वेंट बैक एंड टोल्ड देयर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स दैट देयर वाज अ डॉक्टर इन द लिटिल हाउस विद बिग गार्डन हु रियली वाज अ डॉक्टर. अब जब ये जानवर ठीक हो जाते हैं तो ये अपने दोस्तों और रिश्तेदार को बताते हैं. जैसे कि हम अक्सर करते हैं, हम अगर बीमार होते हैं, हम अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराते हैं, और जब हम ठीक हो जाते हैं तो हम वो उस डॉक्टर का हम रेफरेंस देते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, कि वहाँ जाना, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है. ऐसे ही ये जो एनिमल जब ठीक हो जाते तो ये अपने ब्रदर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को रेफरेंस देते डॉक्टर डूलिटल का. सो कि मतलब वो एक ऐसे डॉक्टर हैं जो हमारी भाषा समझते हैं. सो वर्ड ऑफ माउथ लिटरली फ्रॉम एनिमल्स माउथ स्प्रेड डॉक्टर डूलिटल्स fame far and wide. And whenever any creatures got sick, not only horses, cow, and dogs, but all the little things of the fields like harvest mice, badgers, bats, all came at once to his house on the edge of the town, so that this big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him. और सिर्फ बड़े ही जानवर नहीं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, जैसे छोटे छोटे जानवर जैसे चूहे, बैट्स, बेजो, ये सब इलाज कराने आते. और जब ये सारे इलाज कराने आते तो बिल्कुल भीड़ हो जाती. सो एवरी लिविंग बीइंग, बिग और स्मॉल, केम टू हिम फॉर हेल्प. और जब सब लोग, ये जानवर सब जब आते तो उसका घर, जो उसके घर का गार्डन था, वो हमेशा जानवरों से भरा रहता था. सब अपनी बारी का इंतज़ार करते थे. सो इट्स लाइक अ क्राउडेड क्लिनिक बट फॉर एनिमल्स, right? There were so many that came that he had to have special doors made for the different kinds. He rode horses over the front door, cows over the side door, and the sheep on the kitchen door. So each kind of animal had a separate door. Even a mice had a tiny tunnel made for them into cellar where they waited patiently in rows for the doctor to some to come round to them. तो अब इतने सारे जो जानवर हैं उनके घर उसके क्लिनिक में आते थे. तो उन्होंने क्या किया, ताकि सब कुछ हौच पौच नहीं हो, उसके लिए वो डॉक्टर डोलिटल ने इतने सारे जानवरों के अलग अलग दरवाजे बनाए और उन सब गेट्स पर इन एनिमल्स का नाम लिखा. जैसे हॉर्सेस लिखा फ्रंट डोर पे, तो मतलब फ्रंट डोर से हॉर्सेस आएंगे. साइड डोर पे काउस लिखा, जिनकी साइड डोर से सिर्फ काउस आएंगी. और किचन डोर पे शीप लिख दिया, तो किचन डोर से शीप आएंगी. और हर एक एनिमल के लिए सेपरेट डोर बनाए. इवन माइस के लिए टाइनी टनल बनाए, ताकि वो सेलर में, मतलब जो रूम था उसमें वो आराम से आ जाएं. वेयर दे वेट, और वहीं पर आकर, मतलब उन गेट से ये लोग आकर पेशेंटली लाइन लगा के डॉक्टर के लिए वेट करते थे कि डॉक्टर उनके पास आएंगे राउंड लगाने के लिए. सो मतलब ही डॉक्टर डूलिटल ऑर्गेनाइज हिज क्लीनिंग टू हेल्प ऑल स्पीशीज कम्फर्टली. उन्होंने हर दरवाजे पर जानवरों के नाम लिखे. सो अ हाउस विद सेपरेट एनिमल एंट्री गेट्स, दैट्स हिलेरियस एडोरेबली. जैसे चूहों के लिए छोटी सी टाइनी टनल बना दी जिससे वो आराम से अंदर आ सके. एंड डॉक्टर डूलिटल केयर फॉर एवरी क्रीचर नो मैटर हाउ स्मॉल, कोई कितना छोटा या बड़ा हो, ये इलाज करते थे. And so in few years time, every living things for mice and mice got to know about Dr. John Dolittle MD, ये इनकी डिग्री है. And the birds who flew to other countries in winter told the animals in foreign lands about Dolittle, who could understand their talk and help them in their troubles. अब कुछ ही सालों में बहुत माइल्स दूर से भी जानवर आने लगे, मतलब जानने लगे डॉक्टर डूलिटल को. मतलब उनकी काइंडनेस ने उन्हें एक लेजेंडरी बना दिया कि सारे जानवर उन्हें बहुत प्यार करते हैं. और जब विंटर्स में दूसरे देशों से बर्ड्स उड़कर आते तो वो अपने साथ डॉक्टर डूलिटल की कहानियाँ लेके जाते और फॉरेन के भी जानवरों को बताते कि वहाँ एक ऐसा डॉक्टर है जो हमसे बात कर सकता है. सो हिज फेम स्प्रेड वर्ल्ड वाइड एंड ही बिकेम द डॉक्टर ऑफ ऑल क्रीचर्स, राइट. सो इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमंग ऑल एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इस तरह से वो पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन हो गया. एंड ही वॉज हैप्पी, लाइक हिज लाइफ वेरी मच. और सबसे ज़रूरी बात, डॉक्टर डूलिटल इस बात से बहुत खुश थे कि वो अब जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं. उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था एनिमल्स की हेल्प करना. सो ट्रू हैप्पीनेस कम्स व्हेन यू लिव विद कंपैशन एंड पर्पस. सो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी थी. ये एक ऐसे दयालु डॉक्टर के बारे में थी जो जानवरों को बहुत प्यार करते थे.
उनका जो तोता था पॉलिनेशिया, ये उन्हें जानवरों की, बर्ड्स की, एनिमल्स की लैंग्वेज सिखाता है और धीरे धीरे वो जानवरों के डॉक्टर बन जाते हैं। उनकी समझदारी, उनकी दया, उनका ये जो इतना फ़नी बिहेवियर है, इससे सभी जानवर उन पे मतलब मज़ेदार स्वभाव है, जो बिल्कुल उनका ये जो इतना अच्छा बिहेवियर था, इतने अच्छे से डील करते थे वो एनिमल्स को, उसकी वजह से सभी एनिमल्स उन पर ट्रस्ट करते थे। सो आखिर में दुनिया भर के जानवरों के बीच वो हीरो भी बन गए। सो काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग कैन क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन एवरी लिविंग बीइंग। व्हेन वी केयर फॉर एनिमल्स वी मेक द वर्ल्ड फॉर अ बेटर प्लेस, right? So this story is very funny and heartwarming tale about a kind doctor named John Dolittle who loved animals more than anything else. Dr. Dolittle was a was a human doctor at first. He was a human doctor at first, but his patients, humans, stopped visiting him because his house is always full of animals. He never minded though. When he was happiest when surrounded by his animal friends. One day, his parrot pet parrot Polynesia, who could talk, and told him that animals have their own language, and she offered to teach it to him. So Dr. Dolittle became very curious and started learning the birds language, and he could understand and talk to all kinds of animals like dogs, horses, birds, pigs, sheep, even mice. And after that, he decided to become an animal doctor. At first, people laughed at him, but when he cured animals successfully, everyone started bringing their pets and farm animals to him for treatment. So one day, a plow horse came to him and said the old vet didn't understand his problem. So the horse told Dr. Dolittle that he needed spectacles because his eyes was going weak. So doctor listened carefully and it got green glasses made for the horse, and soon the horse could see perfectly. उसके बाद तो ये बहुत ही फेमस हो जाते हैं, बहुत दूर दूर से एनिमल्स, बर्ड्स इनके पास आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए. As year passes, even birds carried his name to other countries, telling animals everywhere about the wonderful doctor who could talk to them and help them when they were sick. So Dr. Dolittle became beloved and famous among all the creatures. And most importantly, he was truly happy because he lived a life full of kindness, care, and love for animals, right? तो ये थी कहानी. अब हम पढ़ेंगे इसे यूनिट का एक पोएम. So this is the poem A Funny Man, which is written by Natalie John. In this poem, we are going to meet a very strange yet amusing person, someone who is funny, unusual, and does everything in a completely different way. The poem A Funny Man, written by Natalie Joanne, is full of humor, imagination, and wit. It describes a man who never does things in the normal way, like he wears his clothes inside out, he walks backward instead of forward, and even his habits are upside down. So, through light-hearted and rhythmic lines, the poet shows how this man's odd behavior makes everyone laugh. But at the same time, it reminds us that being different is not always bad. Sometimes it's a uniqueness that makes life more beautiful and joyful. So this poem is simple yet full of fun, encouraging us to laugh, stay cheerful, and not take life too seriously. So let's read the poem line by line, and we'll understand the deep meaning behind these lines. Right? One day, a funny kind of man came walking down the streets. अब एक दिन एक अजीब सा फनी आदमी, अ फनी काइंड ऑफ मैन मतलब एक फनी सा आदमी सड़क पर चलता हुआ आया. कमिंग, केम, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट. सो द पोएट सीज अ स्ट्रेंज मैन walking down the street. So from the very first line, we know that something unusual is going to happen. He wore a shoe upon his head. देखिए, शू को हेड पर पहना है, शू को हम अपने पैरों में पहनते हैं, इसने हाथ सर पे पहना है. एंड हैट अपॉन हिज फीट, और ये देखिए हैट्स को फीट में पहना है. सो उसने पहने अपने शूज़ को सर पे पहना है और हैट को पैरों में पहना है. सो ही वियर्स एवरीथिंग इन अ रॉन्ग प्लेस, अपसाइड डाउन. दिस फनी इमेज मेक्स
makes us laugh. He is completely mixed up. He raised the shoes and smiled at me. अब उसने सिर से जूता उतार कर बहुत ही पोलाइटली वो मुस्कुराया मुझे देखकर. सो इवन दो लुक ही लुक्स फनी बट ही इज़ पोलाइट एंड वेल मैनर्ड. सो नेवर जज समवन ओनली बाय लुक्स. ही मे स्टिल बी काइंड एंड जेंटल. हिज मैनर्स वर पोलाइट. बहुत पोलाइट था, बहुत मैनर्स वाला बंदा था ये, वेल मैनर्ड था बेसिकली. बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइट. तो यहाँ पोएट कहते हैं कि मैंने तो पर कभी इतना अजीब सा कुछ नहीं देखा. सो द पोएट इज सरप्राइज द मैन लुक्स एंड एक्ट्स इन द स्ट्रेंजेस्ट वे पॉसिबल. कि ये देखने में तो बहुत फ़नी लग रहा है लेकिन हाँ स्टिल ही इज़ वेल मैनर्ड, राइट. ही सेड अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज़. वो आदमी बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही ग्रेस से बोला, अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज़. कि महाराज कृपया ये करके मेरा रोज़ एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए. सो द मैन प्रिटेंड्स टू एक्ट लाइक अ जेंटलमैन गिविंग अ गिफ्ट, राइट. एंड टेकिंग आउट अ currant bun, he held it he held it to my nose. अब उसने असली मतलब उसने बोला तो ये कि आप रोज़ एक्सेप्ट करें मेरी तरफ से, लेकिन उसने असली गुलाब निकालने की बजाय उसने एक करंट बन होता है केक. आपने केक खाया होगा ना ब्लैक करंट फ्लेवर का. सो दिस इज़ करंट बन. तो उसने गुलाब की जगह वो करंट बन यानी कि केक मेरी नाक के सामने रख दिया. बिल्कुल नाक के मतलब मुंह के एकदम मेरे फेस के बिल्कुल सामने रख दिया. मतलब बोला ये कि मुझे आप अलाउ करो कि मैं आपको रोज़ एज अ प्रेजेंट दूँ, लेकिन रोज़ को देने की जगह उसने वो केक दे दिया. सो इंस्टेड ऑफ अ रोज़ ही ऑफर्स अ बंस. दिस इज़ सिली बट फनी. So this fun is in his confusion. He doesn't realize how mixed up he is. I staggered back against the wall and then I answered, well. तो पोएट यहाँ बहुत ही हैरान होता है कि इतने में वो मतलब वो टकरा गए दीवार से. मतलब वो इतना हैरान हुआ कि दीवार से टकरा कर और बोले अरे वाह. सो पोएट इज shocked by this funny action. I never saw her rose with such funny looking smell. मतलब वो इतना हैरान हुए कि रोज़ बोल के केक दे रहा है, तो वो खुद भी बोला कि अरे वाह मैंने तो कभी ऐसा रोज़ नहीं देखा जिसकी इतनी फ़नी लुकिंग स्मेल है. सो ये कहते हैं कि मैंने ऐसा गुलाब नहीं देखा जिसकी ऐसे अजीब से खुशबू आती है. सो द पोएट कंटिन्यूज द जोक एंड प्रिटेंडिंग टू बिलीव दैट इट इज़ रियली अ रोज. सो इवन द स्मेल इज़ फनी. Everything about the man is upside down, right? He then began to sing a song and sat down on the ground. फिर वो आदमी ज़मीन पर बैठकर गाना गाने लगा. So the man starts singing right there without caring about people watching him. You never heard in all your life such a funny feeling sound. सो अब वो पोएट कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी कभी मज़ेदार आवाज़, फ़नी आवाज़ सुनी ही नहीं थी. इवन सिंगिंग साउंड स्ट्रेंज एंड फ़नी. सो द पोएम कीप्स इट्स प्लेफुल टोन थ्रू आउट, राइट. माई फ्रेंड वाई डू यू वेयर टू हैट्स अपॉन योर फीट, आई सेड. अब इसने पोएट ने इससे पूछा कि मेरे दोस्त तुमने पैरों में ये दो टोपियाँ क्यों पहन रखी हैं. सो द पोएट फाइनली आस्क्ड द ऑब्वियस क्वेश्चन वाई ही ड्रेस सो ऑडली. कि सर पर शू रखा है और पैरों में दो कैप हैट रखी है, क्यों. तो ही टर्न द अदर वे अबाउट एंड होप्ड होम ऑन हिज हेड. अब आदमी जो है इतना सुनते ही वो उल्टा घूम गया. सोचिए ये बंदा है, ये इतना सुनते ही ऊपर ये घूम गया रिवर्स. अब इसकी हैट ऊपर हो गई, इसका शू जो है वो नीचे हो गया इसके सर के साथ. तो आदमी पूरा उल्टा घूम गया और सिर के बल कूदते कूदते इनके शू पर चल के अपने घर चला गया. सो ही लिटरली होप्स अवे ऑन हिज हेड एंड इंस्टेड ऑफ हिज फीट. एंड द फनीएस्ट एंडिंग this is the funniest ending possible. The poet leaves us laughing out loud, right? So this is the poem. This is very short poem. The poem A Funny Man describes a strange yet cheerful man who does everything upside down. He wears shoes on his head and hats on his feet and offers a bun instead of a rose and even hopes on his head to go home. The poem is full of funny images and playful rhythms that makes us laugh and enjoy the silliness. It also gently teaches us not to judge people by appearance and to enjoy life with humor and open heart. So this is the moral message for this poem. Laughter is the best medicine. It makes
life lighter and brighter. So the poet shows that a little fun and foolishness can bring joy to everyone, right? सो यहाँ पर हमें पता चला कि ये जो फ़नी मैन है ये बहुत ही लाइट हार्टेड और ह्यूमरस पोएम है। ये एक अजीब से आदमी के बारे में जिसने सब कुछ उल्टा कर रखा है, उल्टा पहना हुआ है और बहुत फ़नी है। तो पोएट इसको मिलता है, इसको देखता है और जो इससे बातें करता है, इसको देखता है कि दैट मैन इज़ वियरिंग अ शू ऑन हिज हेड एंड हैट ऑन हिज फीट एंड ही लुक्स वेरी ऑड, बट ही बिहेव्स पोलाइटली एंड स्माइल्स एट द पोएट। फिर बाद में उसने पूछ ही लिया उसको कि भाई ऐसा क्यों किया है। When the poet finally asks him, "Why do you wear hats on your feet?" So man doesn't answer. Instead, he turns around and hopes home on his head. So the whole poem is filled with wit, humor, and imagination. So it makes us laugh at the silly behavior of the man and reminds us that being different can sometimes be fun. So laughter makes life beautiful. The poem teaches us to enjoy the little funny things in life. So to stay cheerful and to see the world with joy and humor. राइट अब इस यूनिट का आखिरी पार्ट पढ़ेंगे जो कि एक प्ले है जिसका नाम है से द राइट थिंग। सो से द राइट थिंग इज़ रिटन बाय G.C. Thornley. It's a light-hearted story full of wit, confusion and clever humor. The play is all about how saying the wrong thing at the wrong time can lead to funny misunderstanding and chaos. So it shows us how our words, when not used carefully, can create problems, but at the same time the play also makes us laugh at the silly mix-up. So the story revolves around ordinary people caught in everyday situations where one wrong sentence, a misplaced comment, or a careless reply turns everything upside down. So each scene is filled with comic timing, clever dialogue, and situational humor that keeps the audience entertained from beginning to end. So through its humor, the writer gently reminds us that it's not only important to speak but to think before we speak. So because sometimes even a small word can make a big difference, right? चलिए पढ़ते हैं प्ले को और समझते हैं इसका मतलब. So this is a humorous play in which a mother advises her daughter to say the right things at the right time. तो ये एक ऐसा प्ले है जो एक मदर के बारे में, एक मदर अपनी बेटी को एडवाइस करती है कि उसको ना सही बात सही समय पर कहनी चाहिए. However, when guests arrive, the daughter hilariously forgets her mother's guidance. लेकिन जब गेस्ट घर पर आते हैं तो मदर जो डॉटर है वो बहुत ही फ़नी वे में सब भूल जाती है जो उसकी माँ ने उसको सिखाया होता है, जो गाइडेंस दी होती है. सो रीड द प्ले टू फाइंड आउट हाउ शी कमिट्स ब्लंडर्स, मिस्टेक्स एंड एम्बेरसेस द गेस्ट एज वेल एज हर मदर. सो कैरेक्टर्स यहाँ पे मैरी शो है. मैरी शो ये यंग लड़की है. मैरी इसकी मदर है मिसेस शो. मैरीज मदर एक मिसेस हार्डिंग है, ये वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग है जो कि बहुत ही वेल्दी मैन है. और एक मिसेस ली है जो कि मिस्टर हार्डिंग की मैरिड सिस्टर है. तो एक मिस्टर हार्डिंग है इसमें. बाकी मिस्टर हार्डिंग की वाइफ है मिसेस हार्डिंग और उनकी बहन है मिसेस ली. और मैरी शो है और इनकी मैरी शो और इसकी मम्मी मिसेस शो है. तो ये 4 कैरेक्टर्स हैं जो इस प्ले में हमें पढ़ने को मिलेंगे, राइट. सो चलिए सीन 1 पढ़ते हैं. सो देखिए सेटिंग में दिख रहा है कि कमरा जो है वो मतलब ये मिसेस शॉ और उनकी बेटी मैरी का घर है. मिसेस शॉ मैरी को बहुत चीज़ें सिखा रही कि उन्हें बहुत सलीके से रहना चाहिए. लेकिन मैरी जो एक छोटी बच्ची है थोड़ी सी मस्तीखोर है और बातूनी बहुत है. देखिए इसका रूम भी कैसे फैला हुआ है. तो इसको ही हम चाहती है कि तुम्हें ठीक से रहना चाहिए. मिसेस शॉ का फर्स्ट डायलॉग है सीन 1 में. द रूम लुक्स क्लीनर नाउ. पुट द कोट अवे इन योर बेडरूम. This room is not the place for coats. Mrs. Harding and Mrs. Lee will soon be here and they don't want to see that. तो मिसेस शॉ अपनी बेटी को कहती है कि अब कमरा थोड़ा साफ दिख रहा है और अपने कोट को, ये कोट यहाँ रखा है ना, अपने कोट को जाओ अपने रूम में रख कर आओ, यहाँ नहीं, ये जगह तुम्हारे रूम के लिए ठीक नहीं है. सो शी वॉन्ट्स एवरीथिंग टू बी नीट एंड टाइडी बिफोर द गेस्ट अराइव. प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, लाइक एवरी मदर, सबकी मम्मी ऐसी होती है, ऐसे सबको यही कहती है कि रूम साफ़ करो. वो फिर वो कहती है कि मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली यानी कि मिस्टर हार्डिंग की वाइफ और उनकी बहन बहुत ही जल्दी यहाँ आ जाएंगे और वो ये नहीं चाहती कि वो इस तरह की गंदगी देखें.
So she is expecting guests and wants to make a good impression, right? अब मैरी कहती है यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे। वो कहती उसकी माँ, मैरी थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है अपनी मदर की इस बात से ना, वो कहती है कि आप हमेशा चीज़ें उठाने को कहती हैं। सो मैरी फील्स हर मॉम nags टू मच, टिपिकली मदर डॉटर मोमेंट। मिसेस शो, येस आई एम, यू लीव योर क्लोथ्स ऑल ओवर द हाउस। तो कहती है हाँ, मैं ऐसे ही हूँ क्योंकि तुम हमेशा पूरे घर में अपने कपड़े फैला देती हो। तो मैं कहती आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ, अब मैं बच्ची नहीं हूँ। वही टिपिकल टीनेजर एटीट्यूड है, इरिटेटेड बट फनी। तो मिसेज मैरी जो है, नाउ शी इज़ टायर्ड ऑफ मैरीज मैसेज हैबिट्स। और मैरी जो है वो थोड़ी बड़ी भी हो रही है, तो वो कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे हर बात पे रोका टोका मत करो। नो यू आर नॉट, सो प्लीज़ कीप योर क्लोज इन योर ओन रूम। कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम बच्ची नहीं हो, तो जाओ अपने कपड़े अपने कमरे में रखो, अपनी चीज़ें अपने कमरे में रखा करो। Why are those two women coming here? Who is Mrs. Harding? कहती कि दोनों औरतें हमारे घर क्यों आ रही हैं, क्यों आ रही है भाई, और ये मिसेस हार्डिंग है कौन? तो वो बताते कि शी इज़ द वाइफ ऑफ अ वेल्दी मैन, मिस्टर हार्डिंग। ही हैड जस्ट बॉट अ बिग हाउस इन लैंडफील्ड। तो बताते हैं कि ये जो है ना मिसेस हार्डिंग, ये मिस्टर हार्डिंग जो कि बहुत ही वेल्दी मैन है, ये उनकी वाइफ है। उन्होंने अभी लैंडफील्ड में एक बहुत ही बड़ा घर लिया है। दे लिव्ड इन लंडन बिफोर, उससे पहले वो लंदन में रहते थे। शी इज़ कमिंग टू हैव अ टॉक, वो यहाँ हमसे बातें करने आ रही है, राइट? तो वो हमसे बातें करने आ रही हैं। एंड आई मेट हर इन अ शॉप एंड आस्क्ड हर टू कम। वो मुझे एक शॉप में मिली थी और मैंने उन्हें इनवाइट किया, मैंने उन्हें कहा कि हमारे घर आना। तो मेरी, ओ आई हैव सीन हर चिल्ड्रन, दे ऑफन कम अलॉन्ग द रोड। एंड हु इज़ मिसेस ली? अब उसने दो नाम लिए थे ना, कि मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली आ रही हैं। तो फिर उसने बोला कि अरे हाँ, मैंने उनके बच्चे देखे हैं, वो हमेशा आते हैं, मतलब मैं उनके बच्चों को जानती हूँ, वो अक्सर यहाँ खेलते हैं। और ये मिसेस ली कौन है? तो बताते हैं कि वो मिस्टर हार्डिंग की बहन है। शी हैज़ बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ वाइल, और वो उनके साथ थोड़े समय के लिए, कुछ दिनों से उन्हीं के घर पर वो रह रही हैं। सो मिसेस ली जो हैं वो एक विजिटर्स हैं जो कि उनके घर पर हार्डिंग्स के साथ रह रही हैं। सो व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट? अब वो बड़ी मासूमी से पूछती मेरी कि आप लोग क्या बात करोगे, आपको क्या बात करनी है उनसे? मतलब शी इज़ क्यूरियस बट इनोसेंट। I don't know all kinds of things. One day you will have to go to some of these houses yourself and talk to the people there. मिसेस शॉ कहती है कि पता नहीं कौन सी, बट बहुत सारी बातें करेंगे हम। एक दिन तुम्हें भी इन लोगों के घर जाना होगा और ठीक से बात करना सीखना होगा। सो मिसेस शॉ वॉन्ट्स मैरी टू लर्न गुड मैनर्स एंड सोशल स्किल्स, राइट? कहती आई कैन टॉक नाउ, आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहती मैं तो पहले से बोलना जानती हूँ, मैं तो बोल सकती हूँ, इसमें सीखने वाली क्या बात है, मैं तो बहुत समय से बोल रही हूँ। सो मैरी टेक्स इट लिटरली, शी डजंट गेट हर मॉम मेंट सोशल टॉक। वो सोशल होने की बात कर रही है, वो सोशल टॉक की बात कर रही है, और ये नॉर्मल बात करने को कह रही है। येस दैट्स ट्रू, यू ऑलवेज टॉक टू मच, बट डज एनी वन वॉन्ट टू हियर द थिंग्स दैट यू से? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, लेकिन क्या कोई तुम्हें सुनना चाहेगा? जो तुम बोलती हो सारा दिन, क्या वो सब बातें कोई सुनना चाहेगा? मतलब उसकी माँ से कह रही कि तुम पोलाइटली बोलो, केयरलेसली मत बोलो, दैट्स द मेन आइडिया ऑफ द प्ले। आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, आई स्टे विद यू टुडे एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम। वो कहती है कि ठीक है, मैं अच्छी तरह बात कर सकती हूँ, जब वो आएंगे तो मैं उनके साथ भी बात करूँगी अच्छे से। सो मेरे इज़ कॉन्फिडेंट एंड मे बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओह आई डोंट थिंक सो, यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, इट विल बी बेटर इफ़ यू डू दैट। कहते नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, तुम कुछ ना कुछ गलत कह ही दोगी, तुम जाओ वॉक पर जाओ, वही वही बेटर रहेगा। मैं ही बोलती क्यों, मैं क्यों जाऊँ? तो बोलती इफ़ यू स्टे विद मी यू मे नॉट से द राइट थिंग। वो कहते अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना, तो तुम कभी कोई सही बात तो कहोगी ही नहीं, मतलब तुम सही बात नहीं कहोगी, तुम मुझे गलत बात कहती हो गलत समय पे, और तुम्हें सही समय पर सही बात करनी चाहिए। I know the right things to say. Good afternoon, how are you, and things like that. अब मेरी बोलती मुझे पता है सही चीज़ें क्या होती है, कैसे कहते हैं। सबसे पहले गुड आफ्टरनून बोलना है, फिर हाउ आर यू बोलना है, और इस तरह की और बातें करनी है। लेट मी स्टे टुडे, आज मुझे आप यहीं रहने दो। आई कैन डू इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से रहूँगी। आई शो यू एनी वन कैन टॉक, और मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं भी अच्छे से बात कर सकती हूँ, मैं भी सोशल टॉक कर सकती हूँ। So Mary here tries to prove that she is polite and ready to meet the guest. Mrs. Shaw बोलती है, You may stay if you like, but take care. I want to know Mrs. Harding well, and I want her to ask me to go to their house. There is not much to do.
here in Landfield and I want to know some more people. I want some more friends here. So take care when you say anything. तो वो कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो अगर तुम चाहो, लेकिन ध्यान से रहना, मैं मिसेस हार्डिंग को बहुत अच्छे से जानना चाहती हूँ। मैं ये भी चाहती हूँ कि वो भी मुझे अपने घर बुलाएं। आई वॉन्ट हर टू आस्क मी टू गो टू देयर हाउस। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जाते हो वो मुझे भी इन्वाइट करें, क्योंकि यहाँ लैंडफिल में वैसे भी कुछ नहीं है करने के लिए, और मैं और लोगों को जानना चाहती हूँ और मैं और दोस्त बनाना चाहती हूँ। सो इसलिए जो भी कहो ध्यान रखना। टेल मी वॉट टू से। तो गति बताओ मुझे क्या कहना चाहिए। तो वो उसकी मिसेस शॉ थोड़ा इरिटेट होकर कहती हैं कि आई कांट टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें हर बात तो नहीं बता सकती, बट यू विल ऑलवेज बी राइट इफ़ यू आर काइंड टू पीपल। लेकिन तुम्हें हमेशा अच्छे से बिहेव करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए जब तुम लोगों से बात कर रही हो, जब तुम लोगों से काइंडली बात करो। सेज थिंग दैट विल प्लीज देम, ऐसी बातें कहो जो उनको अच्छी लगे, देन दे विल लाइक यू, उसके बाद वो तुम्हें पसंद करेंगे, राइट। मतलब ऐसी बातें करो जो उन्हें पसंद आए, थोड़ा सा मुस्कुराओ और उन्हें भी हंसाने की कोशिश करो। लाफ अ लॉट एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू, मतलब खुद भी हंसो, खुद भी मुस्कुराओ और उन्हें भी हंसाने की कोशिश करो। सो शी इज़ गिविंग हर डॉटर सोशल ट्रेनिंग, हाउ टू इम्प्रेस गेस्ट। एंड इफ़ एवरी वन स्टॉप टॉकिंग, से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन। और अगर सब चुप हो जाए तो कोई ऐसी बात कहो कि सब फिर से बात करने का माहौल बन जाए। दे डोंट वॉन्ट टू सिट हेयर एंड लुक एट द फ्लोर, वो ऐसे सिर्फ यहाँ बैठना तो नहीं चाहेंगे और फ्लोर को तो नहीं देखना चाहेंगे। मतलब ये कह रही कि जो गेस्ट आएंगे वो सिर्फ चुपचाप बैठने तो नहीं आएंगे, उन्हें बात तो करनी होगी। सो दे डोंट वॉन्ट टू सिट हेयर एंड लुक एट द फ्लोर विदाउट स्पीकिंग, वो बिना बोले चुपचाप तो बैठना पसंद नहीं करेंगे। थिंक ऑफ समथिंग टू से, तो कुछ सोचो और सोच कर ही बोलना कि तुम्हें क्या बोलना है, सोचो तब तक। थिंक ऑफ समथिंग, कुछ सोचो जो उनको अच्छा लगे और तुम उनको बोलो। सो हर मदर इज़ टीचिंग, शी इज़ टीचिंग मैरी कॉन्वर्जेशन स्किल्स, कीप द टॉक गोइंग, राइट। अब वो उसको बोलती है कि कुछ बोलने के लिए सोचो। सो द की एडवाइस ऑलवेज से द राइट थिंग एट द राइट टाइम। सो आई कैन डू, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू से, मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स। वो आगे बोलती है कि मतलब मैं कर सकती हूँ, मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने को होता है। मस्ट आई डू एनीथिंग एल्स, क्या और मैं कुछ और भी करूँ क्या। तो कहती है व्हेन दे आर रेडी टू लीव, डोंट जम्प आउट ऑफ योर चेयर, लुक ग्लैडली एट द डोर, यू मस्ट लुक सॉरी व्हेन दे वांट टू लीव। वो कहती है कि जब वो लोग यहाँ से जाएंगे तो ऐसे नहीं कि तुम चेयर से बिल्कुल कूद जाओ, ऐसे कूदना मत, बहुत ही ग्लैडली दरवाजे की तरफ देखना और ऐसा सॉरी फील करना कि वो जा रहे तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि तुम चाहती हो कि वो और रुकें, राइट। मतलब वो जब वो जाएंगे तो सही अपने घर, तो जब भी वो जाएंगे तो कोशिश करना कि तुम्हें ऐसा दिखाओ कि जैसे तुम्हें अफसोस है कि वो जा रहे हैं। मतलब जब वो लोग जाने लगे तो कुर्सी उछल कर दरवाजे की तरफ खुश मत देखना कि अरे वाह तुम्हारे तो गेस्ट जा रहे हैं। मतलब उनके जाने पर खुशी नहीं दिखानी है, उछलना नहीं है, बल्कि तुम्हें अफसोस दिखाना है। व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, तो वो पूछती कि मैं क्या कहूँ जब वो जाने की लगे, तो मुझे क्या कहना चाहिए। तो मिसेस शॉ कहती है कि आस्क देम टू स्टे अ लिटिल वाइल लॉन्गर, जस्ट से मस्ट यू गो, कांट यू स्टे, और समथिंग लाइक दैट। वो कहती है कि उन्हें थोड़ी देर और रुकने के लिए कह दो, जैसे कहो कि अरे आपको अभी जाना है क्या, थोड़ी देर और रुकिए ना। तो वो उसे कहती है कि उन्हें और थोड़ा रुकने के लिए कहो। ऑलवेज बी कर्टियस व्हेन गेस्ट लीव्स। उसके बाद कहती है कि यू लाइक देम एंड यू वांट देम टू स्टे एंड यू मस्ट लेट देम अंडरस्टैंड दैट। वो कहती है कि तुम उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि तुम उन्हें पसंद कर रही हो और इसलिए तुम चाहती हो कि वो रुके। दैट्स नॉट वेरी हार्ड इज़ इट, I'll remember that. Must you go? Can't you stay? Must you go? Can't you stay? अब कहती है मुस्कुरा के, अरे ये तो बहुत आसान है, मुझे याद रहेगा। Must you go? Can't you stay? Must you go? का मतलब ये याद कर रही है बार बार क्या बोलना है। That's right. Now take your coat to your room and change into a clean dress. You must look nice when they come. कहते हैं ठीक है जाओ, सही कहा तुमने, अब जाओ अपना कोट कमरे में रखो और साफ़ कपड़े पहनो, और जब वो आए तो तुम्हें अच्छा दिखना है। तो मिसेस शॉ वांट्स एवरीथिंग परफेक्ट, क्लीन रूम, क्लीन ड्रेस, पोलाइट वर्ड्स, एंड इफ़ एवरी वन स्टॉप टॉकिंग दे समथिंग से समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन, एंड डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री। और कहती कि अगर सब लोग बात करते हुए रुक जाए तो कुछ ऐसा कहो
कि बात फिर से कंटिन्यू हो जाए, और ऐसी बात तो मत बोलना जिससे उन्हें गुस्सा आ जाए. सो बी प्लेजेंट एंड स्मार्ट, नॉट sarcastic एंड रूड. आई विल रिमेंबर आई हैव डन हार्डर थिंग्स देन दिस. तो मैरी बहुत शान से कहती कि हाँ मुझे याद रहेगा, मैंने इससे भी मुश्किल काम किए हैं. सो मैरी इज़ ओवर कॉन्फिडेंट हियर एंड वी कैन ऑलरेडी गेस व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, राइट. अब ये सीन 1 ख़त्म हो जाता है, सीन 2 चालू होगा. अब ये गेस्ट आ गए, देखते हैं क्या कहने वाली है. सो गेस्ट आ चुके हैं. सो यू लाइक लैंसफील्ड मिसेस हार्डिंग, आई एम वेरी ग्लैड. अभी जो उसकी मदर है ना, वो थोड़ी सी टेंशन में भी है कि सब कुछ परफेक्ट लगे. तो वो पूछती है कि मुस्कुरा के, तो मिसेस हार्डिंग आपको लैंडफील्ड पसंद आया? मुझे बहुत खुशी है कि आपको पसंद आया. सो शी इज़ ट्राइंग टू मेक पोलाइट कॉन्वर्जेशन एंड साउंड फ्रेंडली. येस वी लाइक इट वेरी मच. इट्स नॉट द सेम एज लंडन, बट देर आर सम वेरी नाइस पीपल हेयर एंड वी हैव फाउंड अ गुड हाउस. नो वन सेज एनीथिंग मोर एंड मिसेस शॉ लुक्स एट मेरी. अब वो मिसेस हार्डिंग कहती कि हाँ हमें ये जगह बहुत पसंद आई. हाँ लंदन जैसी तो नहीं है, पर यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं और हमें एक अच्छा घर भी मिल गया. सो शी इज़ बीइंग पोलाइट बट बिट फॉर्मल. तो अब इसके बाद क्या होता है कि सब लोग चुप हो जाते हैं. नो वन सेज एनीथिंग मोर. सब चुप हो जाते हैं, ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है. अब यहाँ पर मिसेस शॉ मैरी की तरफ देख रही है कि जैसे कह रही हो कि तू तू बोल रही बेटा, तू कुछ बोल. अब सब चुप हो गए, तो ये तो सिखाया था उसको कि जब सब चुप हो जाएं तो कुछ ऐसा बोलना कि सब बात करने लगे. तो अब मौका आ गया. अब ये मिसेस शॉ जो अपनी बेटी को देखती है, भाई तू ही कुछ बोल. मैरी कहती है, व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस हार्डिंग, आई हैव ऑफन सी देम वॉकिंग अलॉन्ग द रोड. अब मैरी मुस्कुरा के कहती है कि मिसेस हार्डिंग आपके बच्चे कितने प्यारे हैं, मैंने कई बार उन्हें सड़क पर चलते देखा है. तो मैरी ने यहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश तो की है, लेकिन गलत जानकारी दे दी. मिसेस हार्डिंग, ओह आई हैवंट एनी चिल्ड्रन. वो बोली नहीं मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं है. अब ये गलती कर दी इसने, बच्चे तो उसके है ही नहीं. ओह येस यू हैव, आई हैव सीन देम, अ लिटिल बॉय एंड अ लिटिल गर्ल. वो कहती है कि अरे नहीं नहीं मैंने देखे हैं आपके बच्चे, एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की. तो मतलब अब ये इस बात पर अड़ गई है और माहौल थोड़ा बिगड़ने लगा है. मिसेस हार्डिंग जो कि अब थोड़ी खुश नहीं है, झुंझला गई है, बोलती है आई हैव नो चिल्ड्रन बिलीव मी, मेरा विश्वास करो मेरे बच्चे नहीं हैं. तो मैरी बोलती ओह अच्छा आपके बच्चे नहीं हैं. मतलब एक छोटा सा ओ निकलता है, लेकिन फिर से कमरा जो है साइलेंस, ऑकवर्ड साइलेंस में डूब जाता है. अब मिसेस शॉ जो है थोड़ी सी जल्दी से बात शुरू करती है. दे मस्ट बी समवन एल्स चिल्ड्रन, अरे वो किसी और के बच्चे होंगे. हैव यू मेट मिस्टर बेस्ट, ही इज़ अ नाइस मैन, ही लिव्स नियर यू. फिर वो अपने किसी पड़ोसी की बात करती है मिस्टर बेस्ट की, कि आप उनसे मिली मिस्टर बेस्ट से, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो आपके पास ही रहते हैं, आपके घर के पास ही रहते हैं. सो यू नो मेरी मिसेस शॉ कॉन्वर्सेशन बचाना चाहती है. अब मेरी फिर से बोलेगी, ओह मिस्टर बेस्ट ही लिव्स हेयर एंड ही वर्क्स इन लंडन, he goes all the way to London by train every morning and then he comes all the way back by train every night. अब वो फिर से बोल पड़ती है, हाँ मिस्टर बेस्ट वो यहाँ रहते हैं, लंदन में काम करने जाते हैं, रोज़ सुबह ट्रेन से जाते हैं और हर रात लौट कर आते हैं. ही लिव्स इन ट्रेन, वो तो ट्रेन में ही रहते हैं. शी लाफ्स, उसके बाद वो हंसती है. वॉट काइंड ऑफ लाइफ इज़ दैट, कैसी लाइफ है ना उनकी. मतलब वो ज़ोर ज़ोर से हंस कर कहती है कि क्या ज़िंदगी है वो भी, दिन भर ट्रेन में रहना. वाई डू पीपल डू थिंग्स लाइक दैट, दे डोंट नो हाउ टू लिव. And he reads 2 newspaper in the train every day. He never reads a book, but is only a banker and banker can't think. तो यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंस के वो कहती है कि अरे ये भी कोई ज़िंदगी है, दिन भर ट्रेन में रहना, अखबार पढ़ना, कोई किताब नहीं पढ़ते, दिन में 2 अखबार पढ़ लेते हैं अभी जर्नी में. लेकिन ठीक है, वो तो बैंक में काम करते हैं ना, बैंकर हैं, बैंकर को कहाँ सोचने की फुर्सत है. तो मैरी बोलते बोलते भूल जाती है कि उसके सामने कौन बैठा है, क्योंकि जो मिस्टर हार्डिंग है वो भी एक बैंकर हैं. अब मिसेस ली बोलती है, माई ब्रदर इज़ अ बैंकर, ही गोज़ टू लंडन बाई ट्रेन एवरी मॉर्निंग एंड कम्स बैक एवरी नाइट. ही रीड्स 2 न्यूज़पेपर इन द ट्रेन इन द मॉर्निंग एंड अनदर एवरी नाइट. अब वो उसका भाई होता है. तो मिसेस ली बहुत शांति से बोलती है कि मेरा भाई भी बैंक में जॉब करता है, वो हर दिन ट्रेन से लंदन जाता है, वहाँ वो 2 अखबार पढ़ता है, यहाँ पे ह्यूमर भी और ऑकवर्डनेस भी है. अब मिसेस शॉ और मैरी का दोनों का चेहरा देखने लायक होता है. तो मैरी बोलती है, ओह आई एम सॉरी आई डिडंट नो, अरे मुझे माफ़ कीजिएगा मुझे पता नहीं था. तो नाउ शी इज़ रियलाइजिंग हर ब्लंडर, टू लेट बट टू लेट.
मिसेस शॉ कहते बैंकर्स ऑलवेज have to read a lot of newspapers. Do you know Mrs. Best? She is a nice woman. I like her. और वो फिर से माहौल बनाती है मिसेस शॉ और कहती है कि हाँ हाँ बैंक वालों को तो बार पढ़ने ही होते हैं. आप मिसेस बेस्ट को जानती हो? उनकी वाइफ बहुत अच्छी लेडी है, मुझे तो बहुत पसंद है. तो मतलब अब फिर से कॉन्वर्जेशन बचाती है. अब मैरी फिर बोलेगी बीच में, बट हैव यू सीन हर क्लोथ्स? शी गोज़ आउट इन अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट ओवर इट. इन्होंने भी किसी ने पहना. ओ माई गॉड, ये पहना है इन्होंने. चलिए, अब फिर से मैरी हंसते हुए बोली, लेकिन क्या आपने उनके कपड़े देखे? नीली ड्रेस के ऊपर लाल कोट पहनती हैं, कितना अजीब लगता है. अब यहाँ पर मिसेस शॉ फिर से अपना सिर पकड़ लेती है कि फिर से उसने कुछ गलत कह दिया. मिसेस हार्डिंग कहती हैं, आई हैव अ ब्लू ड्रेस एंड आई ऑफन पुट माई रेड कोट एट द सेम टाइम. मतलब मेरे पास भी ब्लू ड्रेस है और मैं भी उस पर रेड कोट पहनती हूँ उस ब्लू ड्रेस के ऊपर. उसने फिर से गड़बड़ कर दी. मिसेस शॉ फिर से कॉन्वर्सेशन बचाती है, आई लाइक ब्लू ड्रेसेस एंड रोड का नो वन सेज एनीथिंग. कहती नहीं मुझे तो बहुत पसंद है. तुरंत बोल पड़ी मिसेस शॉ, मुझे भी नीली ड्रेस और लाल कोट बहुत पसंद है. मतलब वो पूरा माहौल संभालने की कोशिश कर रही है और मज़ा, और मैरी जो है हर बात पे ब्लंडर किए जा रही है. आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून. आई मेट हर इन द स्ट्रीट. No one sees her in the morning because she always stays in bed then, and she is always asking the doctor to go to see her. I can't understand the women who stay in bed in the morning, and why must she always ask for doctor? I never been to a doctor in my life. अब वो फिर से कुछ कहती कि आज मैंने मिसेस कॉटर को देखा दोपहर में, मैं उनसे डॉक्टर के घर में मिली. वो सुबह कभी दिखती नहीं क्योंकि वो हमेशा बेड पर रहती है. मतलब मेरी फिर से यहाँ पे बिना सोचे समझे बोल रही है और मिसेस हार्डिंग यहाँ पे शॉक में आ गई. फिर वो आगे कहती है हंसते हुए कि वो हमेशा सबको बुलाती रहती है, पता नहीं लोग क्यों सुबह सुबह बिस्तर में पड़े रहते हैं और बार बार डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है उनको. मैं तो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गई अपनी लाइफ में. अब मिसेस हार्डिंग यहाँ पे बोलती कि मैं भी आई स्टे इन बेड इन द मॉर्निंग माई सेल्फ. मतलब मैं भी बिस्तर में देर तक रहती हूँ. और मिसेस ली कहती है ना, आई ऑफन गो टू द डॉक्टर. मैं भी डॉक्टर के पास अक्सर जाती रहती हूँ. तो मतलब जो ये बोल रही है इन लोगों से कनेक्ट हो रहा है. जैसे इसने पहले बच्चों की बात कही तो वो बोले कि नहीं बच्चे हमारे नहीं. फिर इसने किसी मिस्टर बेस्ट की बात की. मिस्टर बेस्ट जो कि बैंकर है, ट्रेन में ट्रैवल करते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, जो कि मिस्टर हार्डिंग की तरह निकले. फिर उन्होंने मिसेस बेस्ट की बात की जो ब्लू ड्रेस पर रेड कोट पहनती है, तो वो मिसेस हार्डिंग की तरह निकली. अब ये एक मिसेस कॉटर की बात करी जो हमेशा बेड में रहती है और बीमार रहती है और लोगों को बुलाती रहती है. तो ये मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली दोनों के जैसे निकली. तो ये बच्ची जो है इन दोनों को कहीं ना कहीं ऑकवर्ड फील करा रही है और सिचुएशन को भी ऑकवर्ड कर रही है. तो मिसेस हार्डिंग बहुत सख्त लहजे में कहती कि मैं भी सुबह देर तक बिस्तर में रहती हूँ, अक्सर डॉक्टर के पास जाती हूँ. मिसेस ली कह देती मैं भी अक्सर डॉक्टर के पास जाती हूँ. मैंने कहती ओह आई एम सो सॉरी. उसके बाद सब चुप हो जाते हैं. कोई ना ही बोले तो ज़्यादा बेटर. अब मिसेस शो फिर से बात संभालेगी. डू यू नो मिसेस ग्रैंटली? शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स. आप मिसेस ग्रैंटली को जानते हो? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है. अब फिर से मेरी बोलेगी, बट शी इज़ सो टॉकेटिव. टॉकेटिव वीमेन आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग आर दे. अब यहाँ पे बोली कि अरे वो तो बहुत बोलते हो टॉकेटिव, और बहुत बोलने वाली औरतें ना इंटरेस्टिंग नहीं होती. क्या होती है? मिसेस ली बोली, मेरी मदर तो बहुत ही टॉकेटिव वूमेन है. तो मेरी बोलती ओह आई एम सो सॉरी आई डिडंट नो. अब फिर से कोई कुछ नहीं कहता. मेरी अब खिड़की के दूसरी तरफ देखती है और कहती है, ओह देयर इज़ द डॉग अगेन. इट ऑलवेज लुक वेरी डर्टी. आई डोंट लाइक डॉग्स. डू यू? हु वॉन्ट अ डॉग? दैट्स डॉग ऑलवेज नियर आवर हाउस. Why do people keep dogs? Who want a dog? Why doesn't it honor keeps it clean? Have you seen it? अभी डॉग के बारे में बोली कि अरे ये डॉग देखो फिर से आ गया, कितना गंदा लगता है ये, कितना गंदा रहता है ये. मुझे तो डॉग्स पसंद नहीं. आपको पसंद है? कौन डॉग्स को पसंद करता होगा? और ये डॉग हमारे घर के पास हमेशा रहता है. क्यों लोग डॉग्स को रखते हैं? क्यों नहीं अपने घर में रखते? जो इसके ऑनर अपने घर में उसको साफ़ नहीं रखते. क्या आपने कभी देखा है? मिसेस हार्डिंग विंडो के बाहर बोलती है, कहती येस आई हैव सीन इट. दैट्स ट्राउज़र. इट्स आवर डॉग. ये जो गंदा सा डॉग जिसकी बुराई करे जा रही है, ये मेरा ही डॉग है जिसका नाम ट्राउज़र, और ये हमारा डॉग है. बहुत ब्लंडर कर दिया इस लड़की ने. अब इसके बाद मेरी बोलती है विद अ रेड फेस, ओह आई डिडंट नो. नो वंस फेस. इसको बेचारी को पता ही नहीं है क्या क्या बोले जा रही है. अब ये फिर दोबारा विंडो की तरफ देखती रहती है. अब कहती है, देयर इज़ मिस्टर पोमरॉय ऑन हिज हॉर्स. ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हॉर्सेस. He rides a horse every day and practice shooting. Why must he do that? What have they done to Mr.
Pomeroy. Why do some men like horses more than they like people? It's hard to understand men. अब ये किसी मिस्टर पोमरॉय के बारे में बोलती है कि देखो वो हर दिन घोड़ा चलाते रहते हैं, गोली चलाने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये कुछ आदमियों को ना इंसानों से ज़्यादा घोड़े क्यों पसंद होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अब मेरे को लगता है कि बस कैजुअल बात हो रही है, पर असल में वो हर बार किसी ना किसी की टांग खींच रही होती है, और वो जिसकी भी टांग खींचती है वो कहीं ना कहीं हैबिट्स में या नेचर में इस फैमिली जैसा ही होता है। तो मतलब हर बार वो अटैक कर देती है इस फैमिली पे जो उनके गेस्ट बनकर आए हैं। मिसेस ली अब अपने भाई की बात बोलेगी। My brother practices shooting when he has the time, and he rides his horse when he can. He sold his house in London and bought a house here because he wanted to ride and practice shooting. अब वो बहुत शांत स्वर में कहती हैं कि मेरा भाई भी शूटिंग की प्रैक्टिस करता है, उन्होंने लंदन का घर बेच दिया और यहाँ बस गए इसी शौक के लिए। अब तो मिसेस शॉ को लग रहा है कि मेरी बस करो, चुप हो जाओ, तुम तो जब मुंह खोल रही हो तभी कुछ ब्लंडर कर रही हो। मिसेस हार्डिंग मिसेस ली की तरफ देख के बोलती है, इट्स गेटिंग वेरी लेट, वी मस्ट गो नाउ मिसेस शॉ, इट हैज़ बीन वेरी नाइस टू हैव अ लिटिल वॉक, लिटिल टॉक। शी लुक्स एट मेरी। अब वो कहती है, मतलब मिसेस मेरी हार्डिंग जो है वो खड़ी होकर कहती है मिसेस ली को देखते हुए कि अब बहुत देर हो गई है, मिसेस शॉ में चलना चाहिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और वो ये कहते हुए मैरी को देखती, क्योंकि मैरी ने बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी इन लोगों की। इनकी इंसल्ट भी नहीं कहेंगे क्योंकि इनोसेंट वे में बोला, इसको तो बेचारी को पता भी नहीं है, जो बस अच्छा बनना चाह रही है। तो मैरी ने अननोइंगली इनकी बहुत ज़्यादा लेग पुल कर दी है। मिसेस ली वेरी नाइस, शी लुक्स एट मैरी। और मिसेस ली भी बहुत मैरी की तरफ ही देख के बोलती है, हाँ बहुत अच्छा रहा। मतलब दोनों मैरी की तरफ देख के बोल रही है कि हमें बड़ा अच्छा लगा आपके घर आके, आपसे बात करके। मिसेस शॉ कहती है, इट वॉज़ वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू सी अस, प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर। तो अब वो कहती है कि मतलब बहुत ही पोलाइट वे में मिसेस शॉ कहती है कि अरे आपका आना तो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी देर और रुकिए ना। अब मेरी फाइनल डायलॉग बोलती है, एंड शी इज़ अनेबल टू से द राइट थिंग इवन नो। और अभी भी उसको याद नहीं आ रहा कि उसे क्या कहना है। उसने सीखा था, उसने क्या सीखा था, मस्ट यू गो कांट यू स्टे, यही सीखा था ना, लेकिन बोल दिया उसने उल्टा। यहाँ पर है ना, उसने सीखा था कुछ, 1 सेकेंड, यस, मस्ट यू गो कांट यू स्टे, इसका कर दिया उल्टा। अब वो बोलेगी, मतलब जो उसकी मदर रोकने के लिए बोल रही है तो वो भी रोकना चाहती है, लेकिन वो उल्टा बोलेगी, ओ मस्ट यू स्टे कांट यू गो। सो आखिर में मैरी ने, जो हमेशा गलत समय पर गलत बात कहती तो बोल पड़ती है कि आपको क्या रुकना ही है, आपको ज़रूर रुकना है, आप चले क्यों नहीं जाते, आप चले क्यों नहीं जाते। सो दिस इज़ द ह्यूमर एक्सप्लोजन। मिसेस शॉ के सारी सही बात कहने के लेक्चर का यही नतीजा निकला कि उसने सारा ब्लंडर कर दिया। सो इस सीन में मेरीन अपनी हर कोशिश में माहौल को और अजीब बना देती है, मिसेस हार्डिंग से लेकर मिसेस ली तक। वो हर बात पर किसी न किसी बात पर उन्हें उनका गलत मतलब निकाल देती है, क्योंकि वो हर बार गलत बात बोल देती है, और हर बार वो आई एम सॉरी कहकर बचने की कोशिश करती है। पर एंड में मस्ट यू स्टे कांट यू को कहकर पूरे प्ले को बहुत ही ह्यूमरस वे में ख़त्म कर देती है। सो knowing how to speak is easy, but knowing what to say and when to say, it's this is the true freedom, wisdom, right? So ये कहानी बहुत ही मज़ेदार थी। ये बच्ची हर बार गड़बड़ कर रही थी। सोशल मैनर्स और कम्युनिकेशन स्किल्स के पर बेस्ड है ये स्टोरी। इस प्ले में मिसेस शॉ अपनी बेटी मैरी को ही सिखाने की कोशिश करती है कि मेहमानों से बात करते समय कैसे बात की जाए, से द राइट थिंग्स। बट मिसेस शो अपने घर में 2 मेहमानों को बुलाती है, मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली। वो अपनी बेटी मैरी को पूरा सिखाती है कि किससे कैसे बात करनी है, बट बेटी सारी गड़बड़ कर देती है। वो कोशिश तो करती है कि वो सारी बातें ध्यान से करे, इनको अच्छा फील कराए, लेकिन वो गलत बात को गलत समय पर कह देती है। और जैसे ही मेहमान आते हैं तो मैरी अपने बोलने के टैलेंट का पूरा परफॉर्मेंस देती है। मिसेस हेडलिंग से कहती है आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, जबकि मिसेस हेडलिंग के तो बच्चे ही नहीं हैं। फिर वो एक बैंक वाले मिस्टर बेस्ट को और उनके काम का मजाक उड़ाती है, ये बिना जाने कि मिसेस ली का भाई भी बैंक में काम करता है। और वो यहीं तक नहीं रुकती, मिसेस बेस्ट के कपड़ों को हंसती है,
मिसेस कॉटर के डॉक्टर जाने की बात पर हंसती है और मिसेस हार्डिंग के कुत्ते को गंदा कह देती है, और हर बार वो आई एम सॉरी कहकर बात संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नुकसान तो हो चुका होता है। एंड में जब मेहमान जाने वाले होते हैं तो मिसेस शो ने उसे सिखाया था कि तुम्हें कहना है मस्ट यू गो कांट यू स्टे, लेकिन वो उसका उल्टा बोल देती है, वो कह देती है मस्ट यू स्टे कांट यू गो, और ये पूरा माहौल हंसी और शर्मिंदगी में बदल जाता है। तो सिर्फ बोलना नहीं है, सही समय पर सही बोलना ही असली समझदारी है, राइट। सो ये यूनिट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ह्यूमरस। सो इस यूनिट 2 में विट एंड ह्यूमर में हमने हर एक कहानी पोएम को पढ़ा और उसमें हंसते हुए कुछ गहरी बातें सीखी। जैसे पहली कहानी थी एनिमल बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल। इसमें हमने जाना कि डॉक्टर डूलिटल की सबसे बड़ी समझ ये थी कि वो मतलब सबसे बड़ी समझ ये थी कि अगर हम ध्यान से सुने और सच्चे मन से समझें तो हम एनिमल्स की वर्ड्स की लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो ये कहानी में सिखाती है कि किस तरह से विजडम से, पिटीनेस से हम हर हर किसी की मतलब वैल्यू को, हम हर किसी की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। पोयम फ़नी मैन कविता में हमने मतलब पोएम में हमने देखा कि कैसे एक आदमी जो जूते को सिर पर पहनता है और टोपी को पैरों में पहनता है, और वो हमें हंसाते हुए ये सिखा गया कि कभी कभी फ़नी होना बुरा नहीं, क्योंकि हंसी इंसान को हल्का और खुश रखती है। और फिर आया ये प्ले से द राइट थिंग, जिसमें मिसेस शॉ और उनकी बेटी मैरी ने दिखाया कि सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही बात बोलना ही बुद्धिमानी है। ये स्टोरी काफ़ी मज़ेदार भी थी और पोलाइटनेस की सीख भी देती है। तो तीनों ही स्टोरी, पोएम और प्ले हमें ये मैसेज देती है कि ह्यूमर एंड काइंडनेस मेक लाइफ ब्यूटीफुल। हंसी, समझदारी और सच्चे व्यवहार से ही हम हर परिस्थिति को आसान और हैप्पी बना सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास इंसाइटफुल लगा, हेल्पफुल लगा, तो आपको एक एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और ऐसी ही एजुकेशनल स्टोरीज़, पोएम्स और प्लेस की फ़न और इजी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 7 इंग्लिश NCERT बुक पूर्वी का यूनिट 3 पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।